So, good evening, everyone. The today's topic is, as you can see, it is the first chapter of your textbook, and that is rational numbers. अब भाई numbers के बारे में we have been studying since early age. We have been studying since class 1. हम लोगों की गिनती ही नंबर से ही हुई थी। जब हम छोटे थे तो हमें क्या सिखाया जाता था? बेटा बोलो 1 2। आपने भी ऐसे ही सीखा है, मैंने भी ऐसे ही सीखा है। ठीक है, तो इसमें कोई कहीं से कोई रॉकेट साइंस हुआ नहीं। कैसे हुआ ये, कहाँ से आई ये चीज? देखो, जब हम बहुत अर्ली एजेस में थे, जब जब ह्यूमन सिविलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट हुई थी, व्हेन पीपल स्टार्टेड काउंटिंग। कैसे काउंट किया उन्होंने? दे नेम दिस एज 1, दिस एज 2, दिस एज 3, दिस एज 4, एंड these and the numbering and the counting went on. This type of counting, this type of numbers that were used initially were called as natural numbers. आगे हम टेबल में I have characterized each and everything, so you are not supposed to write anything. Just listen to this presentation, just listen to what I am speaking. So these type of numbers that were used initially, that were used in the beginning for the count, for the purpose of counting, were called as the natural numbers. इन numbers के बाद में एक और number add हुआ. The We know that Indians gave the zero. Indians gave the zero. It was Aryabhat who first gave the zero in some thousand years back. uh, if I have to be very precise, some 1300 or 1400, no, some 2300 years back, the zero was given for the first time, and that was given by the Indian scientist, Indian mathematician Aryabhat. ठीक है, तो उन्होंने जब जीरो दिया, तो उसके बाद जो हमारे काउंटिंग नंबर्स थे, उन काउंटिंग नंबर्स में एक जीरो भी आ गया. नाउ दिस जीरो इज अ वेरी स्पेशल नंबर. अगर किसी नंबर के लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर किसी नंबर के राइट साइड में लिखा हुआ है तो इस जीरो की वजह से वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. सो द पोजीशन ऑफ जीरो इज वेरी स्पेशल. Now, not only this zero helped us to, this zero helped us in many ways. The zero has helped us in many ways. We will discuss about the importance of this zero someday later. Please switch off your video. We will discuss the importance of this zero someday later. But currently, जब जीरो हमारे कंटिजेंट में आया, जब जीरो हमारी नंबर्स की आर्मी में आया, तो उन नंबर्स की आर्मी को हमने बोला, उन नंबर्स के सेट को हमने, उन नंबर्स के कलेक्शन को हमने बोला होल नंबर्स. तो सबसे पहले क्या है सर? सबसे पहले नेचुरल नंबर्स है. नेचुरल नंबर के बाद फिर होल नंबर्स है. उसके बाद क्या हुआ? फिर धीरे 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 जैसे जैसे सिविलाइजेशन आगे बढ़ी, वी वी मेड फ्यू ऑब्जर्वेशंस. क्या ऑब्जर्वेशन बनाई हमने? हमने बोला, वी मेड सम कन्वेंशन. हमने क्या बोला? हमने दो कन्वेंशन डिफाइन किए. एक कन्वेंशन हमने डिफाइन किया प्लस, दूसरा कन्वेंशन हमने डिफाइन किया माइनस. अब ये प्लस और माइनस क्या होता है, देखो, समझने की कोशिश करना. Currently I am teaching you. ठीक है, I am teaching you, that means the knowledge is added to you, right? तो आपको, आप ये चीजें सीख रहे हो, इस आपके माइंड में इन चीजों का एडिशन हो रहा है. इस चैप्टर को खत्म होने से, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप रैशनल नंबर के बारे में कुछ नहीं जानते थे. जब ये चैप्टर खत्म होगा तो उसके बाद आप रैशनल नंबर को जानोगे. इसका मतलब क्या हुआ? इस चैप्टर के मीडियम से रैशनल नंबर हैज बीन एडेड टू योर नॉलेज, right? Correct? Okay, so this is called addition. If something is coming to me, if something is being added to my wallet, if something is being added to me, then that is called as addition. But if something is being taken from me, suppose my colleague comes to me and asks me to give me, say, some 100 rupees, then that 100 rupee will go away from me, so that will become as negative. So when human beings developed this concept of positive and negative, after that they gave another number that was called as negative number. After that they gave another number that was called as negative number, that is also called as negative natural number.
तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर हमने पढ़ा। सिमिलरली पॉजिटिव नेचुरल नंबर के साथ साथ अपन ने एक और कंसेप्ट पढ़ा, डेट इज कॉल्ड एज नेगेटिव नेचुरल नंबर। तो अभी हमारे पास तीन टाइप के नंबर्स आ गए, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड जीरो। सो इन तीनों के कंसेप्ट को हमने बोला इंटीजर्स। द कलेक्शन ऑफ द थ्री नंबर्स, कौन से थ्री नंबर्स? नेगेटिव नंबर्स, होल नंबर एंड पॉजिटिव नंबर वाज कॉल्ड एज इंटीजर्स। इसके अलावा जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, दैट हैज बीन फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। व्हाट टाइप ऑफ टू कैटेगरीज सर? The natural number has been further classified as even numbers and odd numbers. Now sir, what is a even number, what is odd number? A number that can be that is perfectly divisible by 2, that is called as even number, whereas a number that is not perfectly divisible by 2, that is called as a odd number. Perfectly divisible का मतलब क्या है सर? जब उस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मुझे 0 मिले तो उस नंबर को हम इवन नंबर बोलेंगे। अगर 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर मुझे 0 नहीं मिलता है तो उस नंबर को हम ऑड नंबर बोलते हैं। इसके अलावा एक और नंबर आता है सर, उस नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो कि इटसेल्फ से, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो कि या तो इटसेल्फ से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। अच्छा, कैसा? कैन यू गिव मी सम एग्जांपल? यस आई कैन। द नंबर 7, द नंबर 7 जो कि महेंद्र सिंह धोनी की टी शर्ट का भी नंबर था, है, था, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड इट इज डिविजिबल बाय 1 ओनली। इसके अलावा ये नंबर किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, द नंबर 18 जो कि हमारे विराट कोहली की टी शर्ट का नंबर है। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, 3, 6, 9, 18 and 1. So in addition to 1, this 1 and 18, this number is also divisible by 4 other numbers. So this type of number which is divisible by itself and 1 and other numbers, इसको हम बोलते थे कंपोजिट नंबर, और इसको हम बोलते थे कंपोजिट नंबर। और ऐसा नंबर जो कि खुद से और इटसेल्फ से डिवाइड हो उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो हमारे पास दो नंबर्स आए सर, कौन कौन से नंबर्स आए? एक आया प्राइम नंबर, दूसरा आया कंपोजिट नंबर। अब बात करते सर व्हाट इज वन? वन क्या है? वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है सर, बात समझ में आ गई? अच्छा, एक चीज और, ये सारी की सारी कहानी सिर्फ नेचुरल नंबर्स के लिए, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स के लिए ही होता है। वी डोंट टॉक अबाउट कंसेप्ट ऑफ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर फॉर निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, हम निगेटिव नेचुरल नंबर वर्ड यूज नहीं करते, हम या तो पॉजिटिव इंटीजर यूज करते हैं या तो निगेटिव इंटीजर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो नाउ व्हाट वी हैव नेक्स्ट इज ये हो गया को प्राइम नंबर्स। नाउ व्हाट आर दिस को प्राइम नंबर्स? को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। नंबर्स हुज कॉमन फैक्टर इज, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1 आर कॉल्ड एज को प्राइम नंबर्स। सर कैन यू गिव मी सम एग्जांपल? यस आई कैन। नंबर 32 एंड 33, ये दोनों नंबर को प्राइम होते हैं क्योंकि देखो इनका जो HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अबाउट विच यू हैव लर्नड इन क्लास 7th, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 32 और 33 का 1 होता है। नंबर 2 and 3 आर आल्सो को प्राइम बिकॉज देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। यहाँ से एक बात समझ में आती है कि सर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, अगर एक नंबर n है और दूसरा n+1 है, या एक नंबर 2n है
और दूसरा 2n+1 है, these two numbers, दो consecutive numbers हमेशा 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 को प्राइम होंगे। इसमें कोई शक नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। कहीं पे अगर आपसे पूछा जाए राइट डाउन एग्जांपल ऑफ टू को प्राइम नंबर्स, सिंपली यू राइट डाउन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कहीं से भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर उठा के डाल दो, वो दोनों नंबर्स को प्राइम होंगे। सर क्या इसके अलावा और कोई नंबर्स होते हैं जो को प्राइम हो? यस होते हैं ना। कौन से होते हैं? यस होते हैं ना। कौन से होते हैं सर? देखो नंबर 35 एंड 33, इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है सर, ये क्या होता है? जस्ट ए मिनट। द नंबर 35 एंड 33, इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो क्या होता है? वो 1 होता है। आपको करना कुछ नहीं सर है। अभी कुछ लिखना है? हाँ, डोंट राइट दिस। सर अभी कुछ लिखना है? नहीं नहीं नहीं, don't write these things. These things are given in your book. Okay, just listen to ओके this. If you want, I'll share this PPT with all of you. Don't worry about that. Don't worry about that. Once the chapter is completed, I'll share this PPT with all of you. Just don't write anything, but just listen to what we are. Just listen to what I am explaining to you. Okay. हाँ, जब आपको notes बनाने होंगे, then you can make the notes from your textbook. Okay. तो व्हाट आई वाज सेइंग इज, हाँ, तो को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 होता है। तो ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड द HCF ऑफ द टू गिवन नंबर्स। अगर HCF 1 आता है तो वो दोनों नंबर्स को प्राइम हो गए, अगर HCF 1 नहीं आता है तो वो दोनों नंबर्स को प्राइम नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, चलो। नाउ फ्रॉम हियर द थिंग्स कैन बी रिटन, नाउ फ्रॉम हियर द थिंग्स कैन बी रिटन, ठीक है। But I'll share this thing with all of you, so you can write it these things in your notes. Okay, चलो बात करते हैं नंबर्स की। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स वी विल बी डीलिंग एट ए लेटर स्टेज, नॉट दिस ईयर बट वी विल बी डीलिंग एट ए लेटर स्टेज। करेंटली हमारा जो डिस्कशन होगा वो नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड रैशनल नंबर्स तक ही सीमित रहेगा। So natural numbers are, counting numbers are known as natural number. For example, 1 2 3 4 dot 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 up to infinity, these numbers are called as natural numbers. अगर हम whole number की बात करें, so all the natural numbers together with zero form the collection of all the whole numbers. सारे natural numbers जीरो के साथ मिलके एक दूसरे सेट को बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं natural numbers. Then we have prime numbers. Prime numbers क्या होते हैं सर? All the natural numbers that have one and itself. Now this one and itself is very important, as their only two distinct factors are called prime numbers. वो उस नंबर के फैक्टर्स, दो ही फैक्टर्स होते हैं, या तो खुद हो जाए या तो वन हो जाए। दीज नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। कुछ एग्जांपल्स हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23। इन द नेक्स्ट क्लास योर होमवर्क नंबर 1 इज, इन द नेक्स्ट क्लास आपको लिख के मुझे बताना है कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 100। you have to write down and you have to tell total prime numbers between 1 and 100। ठीक है, this is your homework. Sir, we have to write in our notebook. Yes, you have to write in your notebook. Okay, write it like this. Just a minute. Write it like this. सबसे पहले date, उसके बाद homework, then write the question. Write all the prime numbers between 1 and 100 that you have to Sir, write. Sir, that questions for notebook. No, sir, you had told last period to make 2 notebooks of maths. Yes, So, one will be for this notes and the other will be for this homework that I give you. So this will be your homework. This you have to write in your homework notebook, and in that the first question that you will be writing is this one. You have to write total prime numbers between 1 and 100. ठीक है? Is the question clear to everyone? सर हाँ बोलिए। सर So what I was saying, please don't make unnecessary noise. सर बाय मिस्टेक। Okay, no problem. Okay, next we have
Next we have composite numbers. All natural number except one which are not prime are called composite numbers. ऐसे natural number वन के अलावा जो कि प्राइम नहीं है उनको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स. यहाँ पे एक रिमार्क है, वन जो होता है दैट इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. ठीक है, वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट. नेक्स्ट वी हैव, Sir, it is a natural, positive natural number. it is just a positive natural number, but if every number, whether it is a prime or it is a composite, that is a positive natural number, my dear friend. But if you have to specifically ask, if you are specifically asked whether one is a prime number or a composite number, you should say, sir, one is neither prime nor composite. ठीक है. Next, integers. All natural numbers, zero and negative of natural numbers form the collection of integers. ये बात हम लोग अभी कर चुके हैं. सारे natural numbers, उनके साथ मिला हुआ जीरो और उनके साथ मिले हुए निगेटिव नेचुरल नंबर्स, ये सभी के सभी एक सेट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटीजर्स. ओके. नंबर इज ए प्राइम नंबर और नॉट. हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि वेदर द नंबर इज ए प्राइम नंबर और नॉट. इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम उस नंबर का, जैसे मान लो मुझे 169 को पता करना है कि वेदर दिस 169 इज ए प्राइम नंबर और नॉट. ठीक, तो 169 को पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? 169 का स्क्वायर रूट निकालेंगे. सर अब ये स्क्वायर रूट क्या होता है? ऑल्दो वी विल बी डीलिंग विथ स्क्वायर रूट इन द नेक्स्ट चैप्टर, बट स्क्वायर रूट इज दैट नंबर. जैसे मुझे 169 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट इज दैट नंबर जिसको अगर मैं उसी नंबर से डिवाइड करूं, प्लीज मेंटेन साइलेंस. Square root Sir, is, my microphone is not working. It is starting sometimes and it is closing sometimes. whether a number is a prime number or not. So for that, what you have to do is you have to find the approximate square root of that number. Although we have not learnt square root till now, we will be dealing with square root in the next chapter. But to give you an approximate idea, square root of a number is that number जिसको मैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो आई विल गेट द रिजल्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्स स्क्वायर, अगर मैं 169 के स्क्वायर रूट की बात करूं तो आई हैव टू फाइंड ऐसा नंबर जिसको अगर मैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो आई विल गेट द रिजल्ट एज 169. तो यहाँ पे आई एम गेटिंग दिस नंबर एज 13, क्योंकि अगर मैं 13 को 13 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे रिजल्ट मिलता है 169. नाउ व्हाट आई हैव टू डू, अब मैंने स्क्वायर रूट तो निकाल लिया, अब क्या करना है सर? स्क्वायर रूट निकालने के बाद आई हैव टू मल्टीप्लाई, डिवाइड द गिवन नंबर्स बाय द प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू द अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर. जैसे ये नंबर है, इसका स्क्वायर रूट क्या है? 13 है. तो इस नंबर को मुझे 13 और 13 से पहले वाले जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उससे डिवाइड करना है. फॉर एग्जांपल, कौन कौन से प्राइम नंबर है 13 या 13 से पहले? 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13. There are total 1, 2, 3, 4, 5, 6 prime numbers before 13. Before and equal to 13. Now what I will do is I will divide this number by each of this prime number and check the remainder. If the remainder in any of the case is 0, then I will say that the number is not a prime number. If the remainder is not 0, then I will say that the number is a prime number. For example, if I want to divide 169 को 2 से divide किया, रिमाइंडर 1 आया, तो दैट नंबर इज नॉट ए प्राइम नंबर. 169 को 3 से डिवाइड किया, अगेन द रिमाइंडर इज 169 को मैंने
169 को मैंने 3 से डिवाइड किया, अगेन द नंबर इज नॉट डिविजिबल, सो I should feel happy that yes, the number can be a prime number, क्योंकि the condition is saying that if the number is not divisible by any of these prime numbers, then the number is a prime. तो जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो the number is not divisible, okay, it can be a prime number. जब मैंने 3 से डिवाइड किया, अगेन द नंबर इज नॉट डिविजिबल, ओके, इट कैन बी ए प्राइम नंबर. 5 से डिवाइड किया, अगेन द सेम थिंग, द नंबर इज नॉट डिविजिबल, ओके, इट कैन बी प्राइम नंबर. 7 11 दोनों से जब मैंने डिवाइड किया, अगेन द नंबर इज नॉट डिविजिबल, देयरफॉर इट कैन बी ए प्राइम नंबर. लेकिन अब यहाँ पे मुझे 13 से भी चेक करना पड़ेगा. जब मैंने 13 से चेक किया तो I found that the number is divisible by 13. Therefore, this number is not a prime number. बात समझ में आ गई आप लोगों को? मुझे चेक करना पड़ेगा. I have to check by the all prime numbers which are less than or equal to the square root of this number. एक और एग्जांपल और लेके देखते हैं. यहाँ पे तो मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी. एक एग्जांपल और लेके देखते हैं. बात करते हैं 200 की. अब 200 को मुझे चेक करना है कि वेदर दिस नंबर इज प्राइम और नॉट. तो मुझे 200 का अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट निकालना है. अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट मतलब 200 के सबसे पास वाला परफेक्ट स्क्वायर. अब देखो, ऐसा कोई नंबर नहीं होता है, ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जिसको अगर मैं उसी से मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट मुझे 200 मिल जाए. Therefore, I will say that 200 is not a perfect square. ठीक है, कोई बात नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही केसेस आएंगे. अब करना क्या है, 200 के सबसे पास वाला परफेक्ट स्क्वायर निकालना है. When I will teach you square and square root some 10 days after, then I will tell you how to the squares of some 25 numbers. First 25 numbers मैं आपको बताऊंगा. So you will find that the perfect square nearest to 200 is 196 और 14 square is equal to 196. तो from यहाँ से मुझे क्या conclusion मिला कि 200 का जो स्क्वायर रूट है, approximate square root, that is 14. अब मुझे क्या करना है, इस 14 से पहले वाले I have to write all the prime numbers before less than 14, because 14 is not a prime number. So I have to write all the prime numbers which are less than 14. लिख दो भाई. 2, 3, 5, 7, then 11, then 13. ये 6 प्राइम नंबर्स मिले मुझे जो कि 200 से कम है. अब क्या करें सर? अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये 200 किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहा है. 200 को जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये तो भाई पहले केस में ही परफेक्टली डिविजिबल हो गया. दैट मीन्स दिस 200 इज नॉट ए प्राइम नंबर. जब डिवाइड नहीं हो रहा था तो मुझे लास्ट तक चेक करना पड़ा था. पिछले केस में जब हम 169 को चेक कर रहे थे, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा था, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा था, 5 से डिवाइड नहीं हो रहा था, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा था, 11 से डिवाइड नहीं हो रहा था, लेकिन 13 से डिवाइड हो गया था. तो यहाँ पे मुझे सारे नंबर्स के साथ चेक करना पड़ा था. लेकिन 200 के साथ हमारे साथ एडवांटेज ये हुआ कि जैसे ही मैंने 2 के साथ चेक किया, ये नंबर मुझे दिख गया कि नंबर परफेक्टली डिवाइड हो रहा है. दैट मींस 200 इज नॉट ए प्राइम नंबर. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की. अभी तक तो हमने पुरानी चीजें पढ़ी जो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं. अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की, that is called rational numbers. सर क्या है ये रैशनल नंबर्स? अभी तक जब अपन टॉपिक के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको रैशनल नंबर के बारे में कुछ नहीं बताया था. अब हम रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे. डेफिनेशन. सबसे पहले किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हमें चाहिए होती है उसकी डेफिनेशन. क्या होती है डेफिनेशन भाई? A number that can be expressed in the form of P upon Q, where Q is non-zero integer and P is any integer, is called a rational number.
ऐसा नंबर जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके, जहां पर Q इज ए नॉन जीरो इंटीजर and P is any integer is called a rational number. ठीक है भाई, P अपॉन Q मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दे, where Q is not equal to 0 and P is any integer. P जो है हमारा कोई भी इंटीजर हो सकता है, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक P जो है कुछ भी हो सकता है। शर्त ये होनी चाहिए, Q भी कुछ भी हो सकता है, शर्त ये होनी चाहिए कि सर Q जो है वो जीरो नहीं हो सकता। बस जीरो हो गया तो पंगा फंसेगा। क्या पंगा फंसेगा उसके बारे में कभी और बात करेंगे। सर कुछ एग्जांपल दे दीजिए। ले लीजिए एग्जांपल। 2/3 is a rational number. -5/7, that is also a rational number. -11 upon -5, this is also a rational number. 7 upon -9, this is also a rational number. तो इस टाइप की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। ठीक है सर, समझ में आ गया? आगे बढ़े। किसी को कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख दो। अब बात आती है सर, आगे बढ़ते हैं। अब रैशनल नंबर्स तो पढ़ लिया, अब बात आती है सर कि ये पॉजिटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और ये नेगेटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। सर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स वो रैशनल नंबर्स होते हैं इफ P एंड Q, अगर P और Q मेरे दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। क्योंकि हमने ये बात पढ़ी थी, जैसे -7/12 है, -7 अपॉन -12 है, ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ये बात हम पढ़कर आए हुए हैं। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होता है? अ रैशनल नंबर P/Q इज पॉजिटिव इफ P and Q are either both positive और both negative। अगर मेरे P और Q दोनों या तो पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो जो मेरा रैशनल नंबर है that is called as a positive rational number. Similarly, अगर मेरे P और Q में से कोई एक अगर अपोजिट साइन का है, अपोजिट साइन का मतलब अगर P पॉजिटिव है तो Q नेगेटिव, अगर Q नेगेटिव है तो P पॉजिटिव, तो उस टाइप के केसेस में हम हमारे रैशनल नंबर को क्या बोलते हैं? निगेटिव रैशनल नंबर। हमने क्या सीखा, फिर से समझते हैं। हमने 3 चीजें सीखी। पहली चीज हमने सीखी कि सर रैशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर डेट इज P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा हो, पहली चीज। जहां पे Q नॉन जीरो हो, दूसरी चीज। और P और Q कोई भी इंटीजर हो, उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी ये रैशनल नंबर दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है। पहली कैटेगरी पॉजिटिव रैशनल नंबर, दूसरी कैटेगरी नेगेटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं सर? पॉजिटिव रैशनल नंबर वो रैशनल नंबर, प्लीज स्विच ऑफ योर वीडियो। पॉजिटिव रैशनल नंबर वो रैशनल नंबर होते हैं जहां पे P और Q दोनों या तो पॉजिटिव हो या फिर दोनों निगेटिव हो। सिमिलरली निगेटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं सर? निगेटिव रैशनल नंबर वो रैशनल नंबर होते हैं जहां पे P और Q का साइन क्या हो? अपोजिट हो। अगर P पॉजिटिव है तो Q नेगेटिव, अगर Q नेगेटिव है तो P पॉजिटिव। सिंपल, छोटी सी बात है, ज्यादा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई समस्या हो तो प्लीज पूछ लें। चलो, अब ये हो गया भाई। चलो ठीक है सर, ये तो हमने पढ़ लिया। अब आगे क्या? अब आगे तो पिक्चर अभी चालू हुई है ना मेरे दोस्त। अब हमें जो नेक्स्ट चीज पढ़नी है वो पढ़नी है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। अब देखो भाई, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है। कैसे सर, क्या इंटरेस्टिंग चीज होती है? देखो, आप लोगों ने कई बार कुछ ऐसे नंबर्स को आपने डिवाइड किया होगा
जैसे कि 1/2, अगर मैं 2 को 1 से डिवाइड करूं, चलो मैं पहले आपको डिवीजन सिखाता हूं, है ना। मुझे लगता है कि आप लोग भूल गए होंगे। अगर मैं 2 से 1 को डिवाइड करूं तो कैसे डिवाइड करेंगे? सबसे पहले जीरो लगाएंगे, जीरो लगाया, 1 आया, यहाँ पे 1 आ गया। ये माइनस कर रहे हैं ना, बार बार नहीं लिखूंगा, ये माइनस कर रहे तो समझ में आ रहा होगा। फिर हम क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे। और ये तो हमने पढ़ा था ना कि जैसे पॉइंट लगाते हैं उसके बाद क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है। तो जैसे पॉइंट लगाया, क्या आ गया? जीरो आ गया। अब क्या करना है? 2 5 जा क्या होता है? 10 होता है। तो यहाँ पे 5 लिख दो, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कर दो, बचा कितना? जीरो। तो मेरे पास अब यहाँ पे जीरो बच गया। जीरो बचने का मतलब क्या? कि डिवीजन आगे तो हो नहीं सकता। ये हो गया केस नंबर 1। केस नंबर 2 की बात करें, केस नंबर 2 की बात करें तो चलो देखो, केस नंबर 2 रेड पेन से करते हैं, है ना। अब मान लो जैसे मुझे 3 को 1 को 3 से डिवाइड करना है, पहले 2 से किया था, अब 3 से कर देते हैं। सेम प्रोसेस, 0 0 1, फिर पॉइंट, फिर 0, फिर 3 3 3 जा 9, 9 आया, माइनस किया, 3 3 जा 9, सॉरी, यहाँ पे 1 आया। फिर चूंकि हमने ऑलरेडी पॉइंट लगाया हुआ है तो वापस से जीरो लिखने की जरूरत है नहीं, एक जीरो बाय डिफॉल्ट आ गया। फिर 3 3 जा 9, 9 आया, फिर 1 आया। यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है सर कि ये जो ये जो रिमाइंडर है ये 1 ही आएगा हमेशा। ये 1 कभी भी जीरो नहीं हो सकता। चाहो तो आप जिंदगी भर मल्टीप्लाई डिवाइड करते रहो, करते रहो, करते रहो, दिस 1 इज नेवर गोइंग टू बिकम जीरो। ठीक है सर, बात समझ में आ गई? तो अब हमारे पास आ गए दो दो डिफरेंट केसेस। ठीक है, हम रैशनल नंबर्स की ही बात कर रहे हैं। 1/3 is also a rational number. 1/2 was also a rational number. Why? Because it is expressed in the form of p by q, where q is not equal to 0. अब कोई ऐसा नहीं है जो ये बोलेगा कि सर 2 तो 0 के बराबर नहीं। कोई ऐसा तो नहीं है क्लास में जो बोल रहा है कि सर 2 तो 0 के बराबर होता है, ऐसा तो कोई नहीं है। तो हम रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं, हम रैशनल नंबर के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का मतलब टू एक्सप्रेस द टू 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 डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, उसके बाद टू एक्सप्रेस द गिवन रैशनल नंबर एज इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल्स, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे पास दो केसेस बनते हैं। एक केस होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जिसका रिमाइंडर लास्ट में जीरो आ जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हो गया 1/2। 1/2 के केस में हमारा जो डिनोमिनेटर आता, रिमाइंडर आता है, वो लास्ट में जीरो आ जाता है। उसके बाद हमें मिला 3/20। 3/20 के केस में जो हमारा रिमाइंडर आता है डेट इज अगेन इक्वल टू जीरो। और भी कई सारे केसेस होते हैं। 1/8, क्लास खत्म होने के बाद 1 को 8 से डिवाइड करके देख लेना, 1 को 8 से डिवाइड करके देखना, सॉरी 8 को 1 से डिवाइड करना, सॉरी 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 व्हाट आई एम सेइंग, हाँ 1 को 8 से डिवाइड करना, यू विल गेट द रिमाइंडर एज 0। ओके, और इसका जो रिजल्ट आएगा डेट विल कम आउट टू बी 0.125। इस काम को कर लेना आप लोग क्लास के बाद, अभी मत करना कोई भी। तो यहाँ पे भी हमें ये पता चला कि दिस 1.125 इज द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर इज 0। तो इस टाइप के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलते हैं। इस टाइप के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं सर? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इसके अलावा एक और टाइप का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ सर? जैसा भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल बताया था, जब मैं 1 को 3 से डिवाइड कर रहा हूं, जब मैं 1 को 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है? 0.33333। every time the remainder is going to be every time the remainder is going to be how much? 3, sorry, every time the remainder is going to be 1। okay, similarly यहाँ पे एक एग्जांपल देख लो, जो एग्जांपल दिया हुआ है 5/11। जब मैं 5 को 11 से डिवाइड करूंगा माय डियर फ्रेंड्स, एवरी टाइम द रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 6। और हमें फाइनली क्या मिलेगा? 0.45454545। ये जो 4 और 5 है ये रिपीट होता रहेगा। ठीक है, अगर मैं 2 को
3 से डिवाइड करता हूं तो आई विल गेट द नंबर एज 0.66666 और 6 विल कीप ऑन रिपीटिंग। तो इस टाइप के रेपिटिशन को हम लोग बार से रिप्रेजेंट करते हैं। 0.6666 dot 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 is represented as 0.6 bar. 0.45454545 is represented as 0.45 bar. ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये सर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर, थैंक यू, आपने बहुत अच्छी चीजें बताई। लेकिन सर मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। क्या बात आ रही है भाई? सर मेरे दिमाग में एक समस्या ये है कि अगर कोई बहुत बड़ा नंबर है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को दिया हो 12/1250, 12 divided by 1250, sir, I want to calculate whether this is terminating, whether this is terminating or this is non-terminating and repeating. तो सर क्या मुझे इसे डिवाइड करना पड़ेगा? सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। क्या सर मुझे हर बार डिवाइड करना पड़ेगा? तो द आंसर इज नो। You can directly identify whether this number, whether this the rational number has a terminating decimal representation or a non-terminating and repeating decimal representation. कैसे सर, कैसे पता करेंगे? अभी बताता हूँ। देखो कैसे पता करेंगे, इसके लिए I will give you something. सबसे पहले आपके पास जो भी नंबर दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, या जो भी नंबर आपका क्यू है, उस क्यू का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो। क्या करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आप ढूंढो क्या उस क्यू में 2 की पावर है, क्या उस क्यू में 5 की पावर है। अगर उस क्यू में 2 की पावर और एंड 5 की पावर हो, इसके अलावा और किसी की पावर ना हो, तो उस नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है? या अगर दूसरा केस क्या हो गया, अगर उस नंबर की पावर में 2 की, उस नंबर के प्राइम फैक्टर में 2 की पावर, 3 की पावर, 5 की पावर, 7 की पावर, किसी की भी पावर हो 2 और 5 के अलावा, और अगर वो पावर कैंसिल नहीं हो रही है, इसका मतलब जानते हो दया क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि उस नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। सर समझ में नहीं आया, कुछ एग्जांपल देके बताइए ना। अभी एग्जांपल ले लो। जो हमने लिया था 12/1250, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, 13/1250 कर देते हैं। ठीक है? अब ये हमें पता है कि 13 जो होता है वो एक प्राइम नंबर होता है, तो ये कैंसिल तो होने वाला नहीं है। लेकिन मुझे ये बताना है कि ये जो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये पता करना है। तो इसके लिए सबसे पहले एक बात याद रखो कि पी से तो कोई मतलब ही नहीं है। पी से कोई मतलब नहीं है। पी को हम कभी कभी चेक करते हैं, वो बताऊंगा कब चेक करेंगे। ठीक है, आई विल टेल यू दैट। अब सर इसको चेक करना है, आओ कर चेक करते हैं, देखते क्या होता है। देखो 1250 के प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। दो तरीके हैं, या तो 2 से डिवाइड करो, या थोड़ा सा एडवांस तरीका अपनाते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं। सर जब मैंने 5 से डिवाइड किया तो यहां पे मिला 250। अच्छा, फिर एक काम करते हैं सर, फिर से 5 से डिवाइड कर देते हैं, मुझे मिला 50। फिर एक काम करते हैं, फिर से 5 से डिवाइड कर देते हैं, मुझे मिला 10। फिर 5 से डिवाइड किया तो मुझे मिला 2। तो बेसिकली आई एम हैविंग this 13/1250, this 13/1250, my dear friends, can be written as 13 divided by 2 multiplied by 5 raised to the power 4। मल्टीप्लाई करके देख लो, वही चीज मिलेगी। तो अब हमने क्या पढ़ा, मैंने क्या बताया आपको, अगर मेरे डिनोमिनेटर में 2 की पावर है और 5 की पावर है, तो इसका मतलब जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है सर?
तो मुझे क्या चेक करना था, इस डिवीजन को करने की बजाय मैंने सिर्फ इतना चेक कर लिया और मैं लिख दूंगा आंसर कि दिस विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, डायरेक्ट। अब एक और केस, सर इतना मजा नहीं आया, एक और केस करते हैं ना, चलो एक और केस कर लेते हैं। अब एक काम करते हैं, 9 डिवाइडेड बाय 3750, ओ माय गॉड। चलो 9 डिवाइडेड बाय 3750 करते हैं, क्या होता है देखते हैं। तो इसका जब हम डेसिमल, अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को प्राइम फैक्टर्स में लिखेंगे। पिछले केस में इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि जो 13 था वो खुद में एक प्राइम नंबर है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को प्राइम फैक्टर्स में लिख दो। न्यूमरेटर क्या हो गया 3 इंटू 3, और जो डिनोमिनेटर है ना सर, इसके जब आप प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो डेट विल बी 2 इंटू 3 इंटू 5 रेज टू दी पावर 4 आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो, चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लो या नोट कर लो, क्लास के बाद चेक कर सकते हैं आप लोग। तो दिस विल हैव 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 4। अब हम क्या करें, सबसे पहले ये 3 न्यूमरेटर में भी है, 3 डिनोमिनेटर में भी है, कैंसिल कर दो। ठीक है सर, कैंसिल कर दिया। अब मिलता है मुझे क्या, 3/2 इंटू 5 रेज टू द पावर 4। अब वही चीज आ गई ना फाइनली, भाई 2 की पावर है 5 की पावर है, 2 और 5 की पावर से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, प्रॉब्लम तो थी 2 और 5 के अलावा किसी की पावर से। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ दया कि ये जो है दिस इज having a terminating decimal expansion or a terminating decimal representation. This is how the things are to be done. Now I'll pause for 1 minute if you guys have any. Yes, sir. चलो एक बार जोर से यस सर सारे के सारे बोल दो, फिर आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. Good. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. चलो चलो लेट अस बिगिन। सो अब हम लोगों ने रैशनल नंबर्स में कई सारी चीजें देख ली। अब अगला टॉपिक आता है लोएस्ट फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर। अब सर ये लोएस्ट फॉर्म क्या होता है, देखो 1/2 ये जो है इट कांट बी सिंप्लीफाइड फर्दर, लेकिन ये जो 2/4 है इसको हम सिंप्लीफाई करके 1/2 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं सर, कैसे करते क्या है, सबसे पहले हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं। व्हाट वी डू इज वी फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर कॉमा डिनोमिनेटर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल गया, उसके बाद मान लो इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हमने m बोल दिया। उसके बाद जो मेरा नंबर है, जो मेरा नंबर p/q के फॉर्म में दिया हुआ है, p को भी m से डिवाइड कर दो, q को भी m से डिवाइड कर दो, हो गया काम। यही होता है लोएस्ट फॉर्म। सर एग्जांपल दो ना, कैसे कर रहे हो सर, समझ में नहीं आ रहा। चलो देखते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, से 225 डिवाइडेड बाय 625। चलो 225 डिवाइडेड बाय 625, ठीक है। अब इसको मुझे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों नंबर्स का HCF निकालते हैं। तो HCF निकालने के कई सारे तरीके, एक अपन बचपन में पढ़कर आए हैं, वो डिवीजन करने वाला, दैट वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो नाउ। अब हम क्या करेंगे, जब भी हमें HCF निकालना होगा, बेटा याद रखना इस बात को, जब भी हमें HCF निकालना होगा हम नंबर का प्राइम फैक्टर लिखेंगे। तो इस नंबर का अगर मैं प्राइम फैक्टर लिखूं तो दिस विल बी 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। इस नंबर का जो प्राइम फैक्टर होगा दैट विल बी 5 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 3। कैसे सर, आप ऐसा कैसे कह सकते हो, अभी दिखाता हूं कैसे कह सकता हूं। 5 इंटू 5 क्या होता है 25, 25 इंटू 3 इज हाउ मच 75, 75 इंटू 3 इज हाउ मच 225, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, 75 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, 1 7 3 जा 21, 22, 225 आ गया, ठीक है। तो डेट आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट अगेन एंड अगेन, ये तो अभी आपको बताने के लिए मैंने ये कर दिया। सिमिलरली सर अगर ये जो 625 है इसके फैक्टर्स निकालने हैं तो इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, जस्ट आई एम टेलिंग यू, 5 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाय
5 into 5, ठीक है। इसके हमने प्राइम फैक्टर्स लिख दिए, इसके हमने प्राइम फैक्टर्स लिख दिए। अब मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बेटा वो होता है उस नंबर की सबसे ज्यादा पावर। जैसे इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, 5 to the power 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 to the power 2। इसका प्राइम फैक्टर क्या है, 5 raised to the power 4। 5 raised to the power 4 का मतलब क्या हुआ, मैंने 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, इसलिए ये हो गया 5 raised to the power 4। और यहाँ क्या हुआ, 5 raised to the power 2 का मतलब क्या हुआ, मैंने 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया था तो ये 5 raised to the power 2 हो गया। मैंने 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया था तो ये 3 raised to the power 2 हो गया। अब हर नंबर की हर नंबर की दोनों नंबर्स में से जो हाईएस्ट पावर होगी वो हम लोग उठा लेंगे। जैसे ये है 225, दिस इज 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। ये जो 625 है दिस इज 5 raised to the power 4। तो 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 5 स्क्वायर। 5 की हाईएस्ट पावर इज 5 स्क्वायर। यहाँ पे 5 स्क्वायर है, यहाँ पे 5 raised to the power 4 तो है, लेकिन यहाँ पे 5 raised to the power 4 नहीं है। यहाँ 5 raised to the power 4 होता तो हम 5 raised to the power 4 को उठा लेते। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ तो 2 है, लेकिन यहाँ पे तो 3 की हाईएस्ट पावर 0 है ना भाई। तो 3 की हाईएस्ट पावर हम 0 उठाएंगे। और so this will be 5 square into 3 raised to the power 0। अब anything raised to the power 0 is equal to 1, that we will deal later, but anything raised to the power 0 is equal to 1। तो HCF हमें क्या मिला, HCF हमें मिला 25। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो नंबर है उसको अपन 25 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या नंबर था, 225 डिवाइडेड बाय 25 करेंगे और 625 डिवाइडेड बाय 25 करेंगे। अब बताओ मुझे 225 को 25 से डिवाइड करते तो कितना मिलता है, बताओ बताओ, 9 मिलता है। 25 9 जा 625 होता है, क्लास के बाद मल्टीप्लाई करके देख लेना। और जब मैं 625 को 25 से डिवाइड करूंगा तो कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। तो दिस नंबर, दिस रैशनल नंबर 225 अपॉन 625 को जब मैं लोएस्ट फॉर्म में लिखूंगा तो इट विल रिड्यूस टू 9 अपॉन 25। दिस इज कॉल्ड एज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर। किसी को कोई समस्या, किसी को कोई समस्या, बोलो यार। किसी को कोई समस्या, सर बोलिए बेटा। सर अगर हमारा न्यूमरेटर जो है वो नेगेटिव हो तो हमने उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके उस नेगेटिव साइन को डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर को पहुंचा देंगे, क्योंकि हम लास्ट ईयर सीखे थे ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना नीचे का न्यूमरेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वैसा था। नहीं बेटा, हमें लास्ट ईयर भी स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर निगेटिव हो सकता है, डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पे मान लो 60 अपॉन -72 दिया होता ना, तो सबसे पहले आप इसको -60 अपॉन 72 लिखते, उसके बाद फिर आप इसको इसके HCF से डिवाइड करते। ठीक है, पहले हम इसको -60 अपॉन 72 लिखेंगे, फिर हम इसको इसके HCF से डिवाइड करेंगे। इसका HCF क्या होता है, इसका जो HCF होता है बेटा 60 और 72 का जो HCF होगा डेट विल बी 12। कैसे पता करेंगे, कैसे आपने पता किया, चलो लेट अस डिस्कस दीज टू क्वेश्चंस बिफोर आई विल वाइंड अप। 12 अपॉन 16 है, ठीक है। हमें करना क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इनटू इट्स लोएस्ट फॉर्म। तो ये जो 12 अपॉन 16 है, जल्दी से इसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख देते हैं। दिस विल बी 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू द पावर 1। ये जो 16 है दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 4। कैसे सर, 2 रेज टू द पावर 4, 2 into 2 into 2 into 2, this is nothing but 2 into 2 into 2 into 2, this is equal to 2 into 2 into 3। अब यहाँ पे 2 2 बार है, यहाँ पे 2 4 बार है, तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार है, 2 टाइम्स है। तो द HCF will be
the HCF will be 2 square which is equal to 4. तो जब मुझे इसे लोएस्ट नंबर में लिखना है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा. 12 divided by 4 and 16 divided by 4 which will be equal to 3 by 4. ठीक है सर. अब अगला देख लेते हैं एक बार इसी बात पे. सर अगला भी बता दीजिए ना. -60/72. चलो इसको करते हैं. जब मैं 60 माइनस साइन विल बी ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ, उसके बारे में चिंता नहीं करना है. 60 का जब मैं प्राइम फैक्टर लिखता हूं तो दिस विल बी 2 into 2 into 3, 2 into 2 into 3 into 5. और जब मैं 72 का प्राइम फैक्टर लिखता हूं तो दिस विल बी 2 into 2 into 3 into 2 into 3. ठीक है. तो दिस विल बी द प्राइम फैक्टर ऑफ 72. अब जो सबसे कम, अब जैसे ये 2 है, एक एक करके हर प्राइम नंबर के पास जाएंगे. 2 यहाँ पे 2 बार है, 2 यहाँ पे 3 बार है, तो आई विल टेक द लोएस्ट, दैट इज माय HCF विल बी इक्वल टू 2 into 2. अब आगे 3 के पास गए. 3 यहाँ पे 1 टाइम है, 3 यहाँ पे भी 1 टाइम है, तो आई विल टेक 1 3. उसके आगे चलते हैं. 5 वहां यहाँ पे 1 टाइम है, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, सो आई विल नॉट टेक 5. सो माय HCF विल बी 2 into 2 into 3 which is equal to 12. अब क्या करना है, HCF आ गया. अब हमारा जो रैशनल नंबर है उसको HCF से डिवाइड कर दो. सो माय इक्विवेलेंट विल बी -60 divided by 12 divided by 72 divided by 12 which is nothing but, this is 12, which is nothing but -5/6. ठीक है सर. अगर यहाँ पे 60/-72 होता तो सबसे पहले हम इसे -60/72 लिखते, बाद में फिर इसे सिंप्लीफाई करके -5/6. दिस इज हाउ द थिंग्स आर टू बी डन. चलो, द नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर ऑन नंबर लाइन. We will deal with this topic in the next class. Today I will stop here.